Hare Krishna. So, second chapter, 13th verse. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavanam jara तथा देहांतर प्राप्तिर धीर सत्र न मुह्यति. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो धीर व्यक्ति की व्याख्या है. धीर व्यक्ति कौन है? ना किसी की मृत्यु पे विलाप करता है, ना जन्म में जीते हुए कोई व्यक्ति दुखी है तो उसमें विलाप नहीं करता है. तो इसलिए धैर्य धीर सत्रन मुह्यति, धीर व्यक्ति जो होता है नेवर, वो कभी भी विमोहित नहीं होता है. तो आत्म साक्षात्कार के कुछ श्लोक की श्रृंखला अभी हम सुनेंगे. इसमें तात्पर्य purport Srila by Srila Prabhupada. Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. The individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account of varieties of enjoyment or suffering, according to one's work in life. Such changes of body account of varieties of enjoyment or suffering, according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case there was no cause for lamentation. So there is no cause of lamentation. विलाप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भीष्म और द्रोण जैसे महानुभव व्यक्तियों के प्रति, क्योंकि भीष्म द्रोण जैसे जो महानुभव व्यक्ति हैं वो भगवान के भक्ति हैं, वो भगवत धाम ही जाएंगे, या भगवत धाम नहीं भी गए तो भी कम से कम वीर गति को प्राप्त करेंगे. इसलिए दो तरह का मृत्यु उत्तम मृत्यु माना जाता है. भगवान को स्मरण करते हुए मृत्यु, और दूसरा है युद्ध भूमि में मर जाना. तो जो युद्ध भूमि में मरता है उसे वीर गति प्राप्त होती है, और जो भगवान को स्मरण करते हुए मरता है उस व्यक्ति को भगवत धाम प्राप्त होता है. सो ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन स्वर्ग एंड वैकुंठ, बट स्टिल इट इज़ बेटर rather than going to hell, is better to go to heavenly planets. तो जो क्षत्रिय हैं वो अगर युद्ध भूमि में अपना प्राण गंवाते हैं तो उनके लिए वीर गति, उनके लिए एक अहंकार की बात होती है वीर गति प्राप्त करना. So any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dhira or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. जिसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, अपने अस्तित्व के बारे में पता है, दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता है, अथवा परमात्मा के बारे में पता है, और प्रकृति के बारे में पता है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है. क्योंकि वह धीर व्यक्ति जो होता है वो भौतिक सुख दुख से विचलित नहीं होता है. तो इट्स ऑब्वियस दैट अगर हमको ये ज्ञान है तो हमको विचलित नहीं होना चाहिए. अगर विचलित हो रहे मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है हमको, या फिर वो ज्ञान का विज्ञान में परिवर्तन नहीं हो रहा है. इफ़ वी नो दैट वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, एंड स्टिल वी आर बॉडीली कॉन्शियस, so obviously then the knowledge is only limited to theory. okay, practical नहीं है हमारे जीवन में, तो practical होना चाहिए. so the Mayavadi theory of oneness of spirit soul, again Mayavad theory एकत्वम की बात करते हैं, cannot be entertained on the ground, and a spirit soul cannot be cut into pieces as a fragment portion. मायावादी को एक तर्क ये होता है कि ब्रह्म ज्योति से कई विभाजन होने के बाद सभी जो जीव है उनका विभाजन हुआ ब्रह्म ज्योति से, और फिर जो जीवात्मा है जो मुक्त होने के बाद वो फिर से ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं. दे आर पार्ट्स ऑफ ब्रह्म ज्योति
but they again when they merge into the Brahma Jyoti they become one. But the point is that आत्मा को तो कभी काटा ही नहीं जा सकता ना, स्पिरिट सोल है भगवान, अगर ब्रह्म ज्योति भी एक स्पिरिट है तो उनको विभाजन की बात ही नहीं आती है. सो सच कटिंग इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स वुड मेक द सुप्रीम क्लीवेबल एंड और चेंजेबल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीम सोल्स बीइंग अनचेंजेबल. तो परमात्मा अनचेंजेबल है. द सोल बॉडी चेंजेस बट द सोल नेवर चेंजेस. नित्य सर्व, आगे कई श्लोक आपको मिलेंगे कि नित्य सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातनः, इटर्नल है, कभी चेंज नहीं आ सकता. सो चेंज किसको आता है? जो टाइम से बंधा हुआ है. सो सोल टाइम के परे है, दैट्स वाई सोल नेवर डाइज. सो एज कन्फर्म्ड इन द गीता, द फ्रैगमेंटल पोर्शंस ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्ट इटर्नली, दैट इज सनातन, आर कॉल्ड क्षर. दो प्रकार के चीज़ें जैसे क्षर और अक्षर. द फ्रैगमेंटल पोर्शन ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्ट इटर्नली. So we are part and parcel of Lord. We are the fragmental portions, but actually we are not cut into pieces. We are eternally part and parcel of Lord. ऐसे नहीं कि कोई समय आया था जिसमें भगवान अकेले थे और फिर उनका विभाजन हुआ जीवों में और फिर ऐसे जीव आ गए, कई जीव आ गए, तो ऐसा कोई समय नहीं था. So they have, because as they are called Shara, that is, they have a tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation the individual soul remains the same, fragmental, but once liberated he and lives an eternal life in bliss and knowledge with the supreme personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as Paramatma. So each and every individual body mein there is a super soul that is called Paramatma. Definitely he is different from the living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. So here the theory of reflection is applied here. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and sun or the moon to the Supreme Lord. So the individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna and the super soul is the personality of Godhead Shri Krishna. So they are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed become meaningless. तो मायावादियों का ये कहना कि भगवान कृष्ण भी भौतिकी है, जीव ही एक, तो ये गलत हो जाएगा. क्योंकि अगर जीव है तो एक जीव के पास इतने दोष होते हैं, 4 प्रकार के दोष हैं और वो दोष अर्जुन में भी है. अगर दोनों में ही दोष है तो हाउ कैन वन बिकम अ टीचर एंड वन कैन बिकम अ स्टूडेंट? अ टीचर मस्ट हैव exceptional knowledge, extraordinary knowledge, which a student don't have. So there is no point in studying Gita if Krishna is a normal human being. So if both of them are deluded by illusion and energy, क्योंकि अगर मान लीजिए भगवान कृष्ण जीव ही है तो जीव तो माया के अधीन होता है, तो माया के अधीन अगर रहेंगे दोनों भी तो पॉइंट ही क्या रहेगा? Then there is no need of being an instructor and another instructed. Such instruction would be useless. Because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. जो माया के संसार के भीतर व्यक्ति जो अगर है कोई माया के jurisdiction के अंदर है, then there is no point in studying, because if one is overcome by Maya, then he cannot be perfect. Because all the knowledge is stolen by Maya. So under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity. Arjuna is forgetful soul deluded by Maya. So Arjuna is representing here a forgetful soul. Okay. जीव का ये स्वभाव है कि भगवान को भूल जाना, माया में ग्रस्त होकर भगवान को भूल जाना, भगवान की भगवत्ता को भूल जाना, भगवान से के संबंध को भूल जाना. तो यह अर्जुन इनका रोल प्ले कर रहा है ऐसे जीव का. एंड भगवान कृष्ण इज अ सुप्रीम लॉर्ड, सुपीरियर इन पोजिशन. ओके. जस्ट अ मोमेंट.
So here the soul is called as here very important statement is given that soul is changeable or cleavable. Okay, change soul is cannot be changeable or cleavable. Cleavable means it cannot be divided or cannot be separated. Okay, डिवाइड नहीं किया जा सकता. जैसे एक व्यक्ति को अलग अलग विभाजन किया गया है. दैट्स वाई लॉर्ड इज कंसिडर एज ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. ही इज पूर्ण and even many prakritis come, many shakti, many potencies manifest, many universes manifest from Lord's body, but there is no difference in Lord's body again even after the manifesting of universes. एक एप्पल से 1/4 एप्पल कट करने के बाद 3/4 एप्पल बचता है. तो भगवान का लॉजिक क्या है कि एक एप्पल से अगर 1/4 निकालेंगे तो भी 1 ही बचेगा एप्पल. पूरा होल एप्पल विल रिमेन. हाफ एप्पल निकालेंगे तो भी होल एप्पल विल रिमेन. दैट इज. सो लॉर्ड इज वेरी पोटेंट एंड ही कैन डू एनीथिंग द वे ही वॉन्ट. सो देर इज नो लिमिटेशंस फॉर हिम. सो इवन द प्रीवियस वर्स नतु एवं जातु नासम, there was no time when I was not there, you were not there. This is a very important verse to defeat मायावाद philosophy. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस होते हैं मायावाद फिलॉसफी खंडन के लिए. ये जो वर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 12 जो 12th वर्स. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज दैट सुखदेव गोस्वामी सेज दैट द सोल इज मोस्ट डियर इन ऑल लिविंग बींग्स. फॉर ऑल लिविंग बींग्स द सोल इज मोस्ट डियर. सर्वेशाम एव भूतानां नृप स्वत्मैव वल्लभः. इफ द सोल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, द सोल शुड नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ लैमेंटेशन देन, because it cannot suffer death. And since both types of Atma, the Jiva and Ishvara, are eternal, so thus he speaks this verse, he is chief eternal among all eternals. He is the chief conscious entity. Lord is the chief conscious entity. We are all living entities are conscious, but Lord is the chief supreme conscious entity among all conscious entities. Like a normal human being can understand what is happening in his own body, but a Lord can understand what is happening in all the bodies of the living entities, or what is happening in the mind of all living entities. So this can be known because Lord has an exceptional power of being Paramatma. He is residing in everyone's heart. So the one fulfills the needs of all others, because Supreme Lord he provides necessities to the living entities, and the living entities are dependent on him. Eko bahudha vidhati kaman. That is the verse. Next verse 2.13. Sorry, 2.14. Yes, what is the doubt? That verse, please explain more. Eko bahudha. There's a verse nityo nityanam chetanas chetananam. This verse has been already mentioned in 12th verse of 2nd chapter. The purport very clearly visible. Nityo nityanam chetnas chetananam eko bahunam yo vidadhati kaman tam atmastham ye anupashyanti dhiras tesham shanti shashvat netaresham. It is already mentioned in the verse. You can try to understand the nityo nityanam. We can just try to understand this first two lines. The nitya is eternal. Nityanam, all the eternal beings. Chetana is consciousness. Chetna नाम, all the conscious beings. So एक सुप्रीम नित्य है एंड एक सुप्रीम कॉन्शियस बींग है. ओके, द वन पर्सन हु इज सुप्रीम कॉन्शियस बींग एंड इटर्नल बींग, एंड ऑल अदर पार्ट एंड पार्सल्स आर different varieties of conscious beings and varieties of eternal beings. And eko bahunam yo vidha, bahunam is all the souls, bahunam yo vidhadati kaman. One person is satisfying all the desires of all living entities, and that supreme lord is. इसलिए आप वैष्णव तंत्र में, वैष्णव में पद्धति में भी जो मुंडन करते हैं शिखा रखते हैं. शिखा रखने का मतलब होता है one chief living entities and all other small hairs are is like eternal bahunam, bahu jiva, all the living entities, and one supreme chief is the shikha. So that is the sense. That's why Mayavadi, they don't keep shikha, they don't keep this tuft of hair on their forehead, the sannyasis. But Vaishnava, they have.
सो ये पद्धति में भी, वैष्णव पद्धति में शिखा रखी जाती है. ये भी एक रीज़न है टू शो दैट वी आर वैष्णवस. 2.13 we have completed. Very important verse. Recite this verse, behind this verse, and the next verse is also very important. 2.14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्ष्व भारत. O son of Kunti, the non-permanent appearance, देखिए very important again, the non-permanent, it's not a permanent. Neither happiness, neither problems in this world are permanent. It's non-permanent. Appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Very important analogy of climate it is given here. Season, summer and winter season. So summer, it comes in its own way, summer and winter. You cannot change climate. You can change the temperature of your own room by artificial technologies, but you will not be able to change the temperature by your own effort of the whole city or whole country or whole world. Okay, no matter what you do. So you are helpless. So when the whole country is hot, there is no way out, you have to come out, you have to work, then you have to tolerate the summer. And if you don't want to tolerate, then what else you have option? Only you can tolerate. You have to be patient when that summer will go on its own accord. So by our personal efforts, the season is going to change. Similarly with the problems, there will be many problems in our life, many severe major problems. There can be some tiny problems like of our health. We can take some medicine, all that, but sometimes the disease is so severe that even after taking medicine doesn't go. Even after taking so many treatments doesn't go. And you find someday, one day, then automatically the disease is fading away. So it will go on its own accord. Sometimes it happens. And sometimes we जैसे हम कई बार कितने मेडिसिन करते हैं, कई बार अचानक बहुत महीनों के बाद कोई एक अच्छा डॉक्टर मिलता है जिससे हमको अच्छे उसके मेडिसिन का हमको प्रभाव पड़ता है. अभी डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है. द थिंग इज द प्रारब्ध इज वर्किंग इन सच ए वे दैट यू आर नॉट अलाउड टू गेट क्योर फॉर दोज पर्टिकुलर टाइम सीजन, उतने समय तक. तो जब तक वो ऐसा डॉक्टर मिलना, मतलब वो भी प्रारब्ध से मिल रहा है आपको, देन मेडिसिन विल एक्ट. अदरवाइज हमारे पास एफर्ट में क्षमता नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके. हम अपने बर्थ को भी चूज़ नहीं कर सकते. व्हाट टू टॉक अबाउट डेथ. इवन वी कैन नॉट चूज डेथ. अभी से कोई आत्महत्या करता है तो कभी कभी चूज़ कर लेता है, बट आत्महत्या करने के बावजूद कभी कभी उसे बचा भी दिया जाता है. तो कभी कभी भगवान की इच्छा रहेगी तो फिर, नहीं इच्छा रहेगी तो फिर वो नहीं मर सकता. सो दैट्स फॉर द व्हेन द प्रॉब्लम्स कम, द ओनली ऑप्शन इज दैट टू टॉलरेट, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच पोटेंसी टू completely cure or to have proper solution for it. So like seasons, so in the proper discharge of duty, one should not forget his duty while doing this. गर्मी में कुकिंग करेंगे, करना पड़ेगा. नहीं कुकिंग करेंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे. ठंडी में स्नान भी करना पड़ेगा. तो these are the austerities we perform. So in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress according to Vedic injunctions. One has to take his bath early in the morning, even during the month of Magha, that is January and February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by religious principles does not hesitate to take his bath. कई लोग ठंडी में, कुछ लोग विदेश में स्नान भी नहीं करते, और पर जो धार्मिक व्यक्ति है उसको स्नान करना अनिवार्य है. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June, but we will see there are few moments, or there will be several women will find they will hesitate to cook. बाहर से मंगाई है, but ideal housewife, she will not hesitate. The hottest part of the summer season, even that time also she will cook. So one has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight in the religious principles of the Kshatriya, to fight is the religious principles of Kshatriya, although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. जिस प्रकार सोल्जर, अगर उसको कश्मीर में पोस्टिंग है, हिमालय पे पोस्टिंग है,
और बहुत कड़क ठंड है, तो ये नहीं कह सकता बहुत ठंड है मैं घर पे जाता हूँ रजाई लो के सो जाऊँगा, ये नहीं बोल सकता, बिकॉज ही इज़ अ सोल्जर, कंट्री इज़ फीडिंग हिम, हिज फैमिली, उसको सैलरी मिलती है, तो ये कर्तव्य पथ से वो भाग नहीं सकता है. तो सिमिलरली वी हैव टू टॉलरेट द ऑस्टेरिटी, द इनकन्वीनियंस of material world, and one should not forget his duty. So as a devotee, we are bound to chant 16 rounds, we are bound to read Bhagavad Gita, we are bound to take association of devotees, visit temple, visit dham yatra, everything. Although there will be many hurdles, there will be many austerities, but still we have to carry on with our duty. So one has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge. धार्मिक सिद्धांतों को पालन नहीं करेंगे तो आप ज्ञान के स्तर पर भी नहीं जा सकते. भक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है, आप ज्ञान मार्ग में भी नहीं जा पाएंगे, ज्ञान स्तर पर भी नहीं समझ सकते. या आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये अस्तित्व भी आप ठीक तरह से नहीं आ पाएंगे. बिकॉज बाय नॉलेज एंड डिवोशन ओनली वन कैन लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया. फिर से यही दोहराया प्रभुपाद अभी कि ज्ञान और भक्तिमय सेवा से ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं माया से. जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान मिलता है कि मतलब आपको नॉलेज मिलता है कि देयर इज समथिंग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड यू, समवन इज क्रिएटिंग अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड यू, ही वांट्स टू किल यू एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. एंड व्हेन यू आर नॉट, आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई मारने का प्रयास कर रहा है, आपको पता नहीं है, तो आपका मृत्यु बहुत आसानी से हो सकता है उसमें. पर अगर आपको पता चलता है कि आपको कोई मारने वाला है, ये व्यक्ति है, वो आपको बहुत प्रयास कर रहा है मारने के, तो हम क्या बचाव कार्य के लिए हम कुछ प्रिवेंशन मेजर्स ले लेंगे ऑटोमेटिकली. तो उसी प्रकार ये ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज इट सेल्फ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी प्रिवेंशन मेजर्स. आप क्या अपने आप को बचाएंगे नहीं, क्या करेंगे, पता ही नहीं है कि मेरी जान खतरे में. और जब आपको पता चलेगा कि मेरी जान खतरे में, आप चुपचाप बैठेंगे, यहाँ जान खतरे में होने दो ना, ज्ञान मिल गया अभी, पर आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे तो अभी आपकी जान खतरे में. ओके, यू हैव टू एक्ट टू सेव योर सेल्फ. सिमिलरली ज्ञान मिल गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है. परमात्मा हर किसी के हृदय में, ये ज्ञान है. पर ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करना बहुत आवश्यकता है. कि अगर ज्ञान ज्ञान बन के रह गया आपके पुस्तक में अथवा आपके नोट्स में अथवा आपके मन में, अगर उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इट्स एज वर्स्ट एज हैविंग नो नॉलेज. तो इसलिए ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन होना, दैट विज्ञान क्या है, डिवोशनल सर्विस. जब पता चलता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, तो एक सेवक का कर्तव्य क्या है, सेवा करना. So doing some practical service for Lord, that is very important, that is Vigyan. So without Gyan and Vigyan, without Gyan and Bhaktimay Seva, हम मुक्त नहीं हो सकते. Okay, very important, you can write out this statement. From both sides he is supposed to have a great heritage. Who? Arjuna. The two different names of address given to Arjuna are also significant here in this verse. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore he cannot avoid fighting. भगवान यहाँ पे आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं और फिर भी शारीरिक संबंधों से जो नाम आ रहा है उस नाम को इस नाम से संबोधित करते हैं. There is no problem if one is using material objects for elevation in devotional service. No problem. Like say कोई व्यक्ति में कोई स्किल है, चाहे वो अच्छे कारीगर है या वो लकड़ों का चीज़ बना, सोफ़ा बना सकता है या चेयर बना सकता है, टेबल बना सकता है. So that can be used in Krishna's service. वो आश्रम में ये सब चीज़ें कर सकता है, मंदिर के लिए ये सब चीज़ें कर सकता है. वो कैन सिंग वेरी वेल बॉलीवुड म्यूजिक, देन ही स्किल कैन बी यूज इन सिंगिंग कीर्तन्स ऑफ लॉर्ड. सो दैट वे वी कैन यूज आर even matter can be used in the service of spirit, service of Supreme Lord. So that's why here Krishna is using the Arjun's heritage from father's side and mother's side, the name especially Bharata from father's side, and Kaunteya as you are Kunti Putra. Kunti is a pure devotee of Lord Krishna.
So if Kunti is pure, then why you are like this then? क्वेश्चन ऐसे उठता है ना. तो ये ट्रिगर करने के लिए, अर्जुन को ट्रिगर करने के लिए ये संबोधित किया. भारत, तुम भरत महाराज के वंश में आ रहे हो. तो भरत महाराज के वंश में, भरत दो है, एक शकुंतला की पुत्र भी भरत है और भरत महाराज भरत भी है. तो भरत महाराज के वंश में आते हो और तुम ऐसा वर्तन कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा. ये क्या बात होती है? तो वॉन्ट टू ट्रिगर अर्जुन बाय एड्रेसिंग बाय मटेरियल नेम्स. So Sridhar Swami argued that although it is certainly true that Supreme Lord Krishna is not ever subject to birth and death, being transcendental to the material manifestation, but about the individual living entities who every day are dying and being born, that is what is being answered in these verses. Okay? कि नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः. जब ये श्लोक 12वें श्लोक में बोला गया है, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इसमें कि भगवान कृष्ण का तो ठीक है कि भगवान कृष्ण भविष्य में भी रहेंगे, अभी भी है, वर्तमान में, भूत में भी रहते हैं, कि भगवान तो भगवान होता है. पर जीवों का क्या? हम तो देखते हैं कि कई जीव मर रहे हैं, जी रहे हैं. इसके लिए इसको पूरा करने, इसको तोड़ने के लिए, इस बात को, इसलिए ये श्लोक के उच्चारण है देहिनोस्मि निथा देहे, आत्म साक्षात्कार के. और हम देह नहीं है, हम आत्मा है, फिर भी दुख आता है तो क्या करें? क्योंकि हम इतना मान बैठे कि अपने आप को देह, दुख आता है तो क्या करें? तो मात्रा स्पर्शस्तु कौनते हैं, टॉलरेट करना सीखो. धीर व्यक्ति टॉलरेट करता है. So the purport of this is over here. 14. And Sridhar Swami said that it may be countered by Arjuna that he was not grieving for those who have died or are living, but he was grieving for himself who would be miserable and fallen by their loss. This is being perfect. मतलब ये हो सकता है कि अर्जुन का तर्क ये है, हो सकता है यहाँ पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा है कि अर्जुन में भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ठीक है, हम ये सभी लोग जो हैं ये शरीर नहीं आत्मा है. ये अगर मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो भी उनको नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा. ठीक है, उसमें विलाप करना बंद ही करे. पर अगर उनके एब्सेंस में मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं विलाप करूंगा ना. आई कैन नॉट टॉलरेट द लॉस ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. संपर्क तो टूट जाएगा ना. तो उसको आंसर देने के लिए दिस इज बीन परफेक्टली आंसर बाय द सुप्रीम लॉर्ड इन दिस वर्स. मात्रा स्पर्शस्तु कौनते. कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देर रहती नहीं है. वो उनका लॉस का जो दुख भी है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा. पति मरने के बाद पत्नी को दुख मिल लगता है, बेटा मरने के बाद माँ को दुख लगता है, माता पिता मरने के बाद बेटे को दुख लगता है. पर ये दुख जो है वो कुछ समय के लिए ही रहता है. आप जीवन भर दुख व्यक्त नहीं कर सकते. थोड़ा स्मरण आ सकता है पर जीवन भर नहीं रो सकते. आप जीवन भर टूटे नहीं रहेंगे अंदर से. The situation will change in such a way that you will also laugh again. You will again try to eat and you can have your own normal schedule again. आप अपनी फिर से जीवनी जीने के लिए तैयार हो जाएंगे. आप कमाने के लिए फिर से राज़ी हो जाएंगे. फिर अपना ट्रैवलिंग करने के लिए, आप एन्जॉयमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे. अभी व्यक्ति गया तो गया, अभी क्या करें. तो ये जो दुख है, पर उस समय पे जब दुख आता है तो हम व्यक्ति विचलित होता है और देन he burst out his all emotions. उस समय पे वो पागल की तरह रोता है कभी कभी. और चित्रकेतु महाराज के इंसिडेंट में देखेंगे कि पुत्र मरने के बाद वो कैसे विलाप करते हैं. एक राजा कोई शोभा नहीं देता है ऐसे विलाप करना. तो सिमिलरली इवन वी सी इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो. आजकल तो कम विलाप करते, पहले तो बहुत ज़्यादा रोते थे. अभी इतने आवाज़ें नहीं आते. पहले तो एक हफ्ता भी रोते थे कोई लोग. अभी तो टाइम कम हो गया. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी धीर, not to get bewildered by so-called ups and downs of the material world. So here Arjun is asking कि अरे लॉस ऑफ फैमिली मेंबर भी दुख होता है ना. पर कृष्ण क्या कह रहे हैं? धीर सत्र न मुह्यते, धीर व्यक्ति बनो. So this is being perfectly answered by Supreme Lord in this verse. Just as contact with the different elements of weather such as snow and sunlight by their very nature give rise to cold and heat, similarly, the contact with the objects of senses gives rise to pleasure and pain for all living entities, and these contacts are transitory, being temporary. One being situated in spiritual knowledge should
with fortitude tolerate them and not succumb to lamentation or exaltation because of them. Okay, again, once again we will repeat. The contact with the objects of senses gives rise to pleasure and pain. मात्रा स्पर्शास्ति कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा. ओके, हम जब हमारी जो इंद्रिय है विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं, आँखों को टीवी देखना पसंद है, कानों को मूवीज़ की म्यूज़िक सुनना पसंद है, जीभा को अलग अलग व्यंजन खाना पसंद है, तो ये जो संपर्क में जब आ जाते हैं तभी दुख शुरू होता है वहाँ पे. सो दिस कॉन्टैक्ट्स आर ट्रांजिटरी, बीइंग टेम्पररी, वो परमानेंट नहीं होता है, पर बीइंग सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल नॉलेज शुड विथ fortitude tolerate them and not succumb to lamentation or exaltation because of them. व्यक्ति अपने आप को धीर बनाना है, सहन करना सीखना है. ऐसे नहीं कि वो विलाप करते करते इतना विलाप करने लग जाए कि वो भूल जाए अपने आप को. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्शियसनेस. So quality of your Ramanujacharya says that the quality of sound, feeling, color, taste and smell with their corresponding faculties known as the senses are called matras. Okay, matra means senses, and they manifested from the basic fundamental elements of water, fire, ether, air and ether. Contact of the senses with those matras cause such physical perceptions of duality as cold and hot, hard and soft, bitter and sweet, that are experienced as pleasure or pain. So हमको जब जो विषय वस्तु से जब इंद्रियां संपर्क में आएंगे तभी व्यक्ति को अनुभव होगा सुख दुख का. So Madhvacharya says that even then in the absence of self-realization there is always sorrow. Therefore it is clarified that matras means sensuous experiences and sparshas means contact with them. Thus matra sparshas is the interaction of senses with sense objects. The experience of sorrow does not affect the individual consciousness by itself. Why is this? Because it appears and disappears. If this contact of the senses were actually within the individual consciousness, then they would also exist in the state of a deep sleep. So if this contact, मतलब जो इंद्रियों के संबंध जो बन रहा है इंद्रियों से, अगर वह सच में संबंध है हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारा जो संबंध है इंद्रियों तुष्टि से, इंद्रिय तृप्ति से अगर सच में संबंध है, तो सोते हुए क्यों नहीं याद आता हमको फिर? Why in the sleep we don't have control over sense gratification? Therefore, since it is evident that contact with the senses is experienced only in the waking state and not in any other state, the summation is clear that when there is contact with the physical body, which includes the mind, is there an effect and its prowess that the individual consciousness itself is not affected. Therefore, it is by rejection of one's constitutional position as individual consciousness and position of considering oneself the body that the perception of pleasure, pain, happiness, sorrow and all rest manifests. First I will repeat. So हमको जो सेंस परसेप्शन है, यानी इंद्रियों से हम जो विषय भोग की अनुभूति करते हैं, ये हम सोते वक्त नहीं कर सकते, ये जागृत अवस्था में ही कर सकते हैं. ओके, जैसे जागृत अवस्था में पता होता है कि हमारे साइड में कौन सोया है, सोने के बाद थोड़ी पता चलता है कि कौन सोया है, नहीं पता चलता है. तो इससे बहुत क्लियर है कि फिजिकल बॉडी जब माइंड जब तक साथ में नहीं है, माइंड कोऑपरेट नहीं करेगा सेंसेस के साथ, तब तक ही विल नॉट एक्सपीरियंस पेन एंड प्लेजर. सो इज देयर एन इफेक्ट एंड दिस प्रूव दैट द इंडिविजुअल सोल इटसेल्फ इज नॉट अफेक्टेड. इसे सोल को कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसे तो सोते वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, सोते वक्त थोड़ी कुछ समझ में आया, सोल तो पूरा अलग है. Therefore it is by rejection of one's constitutional position as individual consciousness and accepting the position of considering oneself with the body that the perception of pleasure, pain and happiness, sorrow and all the rest manifests. So rejection, here it is written that the physical body which includes जैसे मन अगर साथ नहीं देगा तो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं. कौन सा श्लोक है? इंद्रियाणाम ही चरतन यन मनो अनुधीव्यते ततस्य हरति प्रज्ञम वायोर्नाव इमं बसी, भगवद गीता के श्लोक है.
कि इंद्रियों, कोई भी मन अगर कोई एक इंद्रिय पर अगर केंद्रित हो जाए तो जिस प्रकार हवा से नाव उथल पुथल हो जाएगी, हमारी भी भक्ति की नाव उथल पुथल हो सकती है. यानी ध्यायते विषयान पुंसा, व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट, very important, when you see some sense of, like for example, for a lusty man, when a woman comes towards him or one woman passes and he just sees a woman, then he get attracted and then he follows that woman, or at least through his mind he follows, he start meditating on that woman. So that is very dangerous. Seeing is different and looking is different. So to look is a deliberate attempt, and to see is not your deliberate attempt. When you see once and then again you want to see, that is a deliberate attempt. It's like looking on someone, staring or glaring. So therefore it is by rejection of one's constitutional position as individual consciousness and accepting the position of considering oneself the body that the perception of pleasure, pain and happiness, sorrow, all the rest manifest. जब ये देहात्म बुद्धि स्तर पर व्यक्ति आ जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तब वो सभी दुख को अनुभव करेगा. वो शारीरिक सुख, शारीरिक दुख, मानसिक सुख, मानसिक दुख का अनुभव करेगा. अदरवाइज फॉर आत्मा एज अ सोल देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ मटेरियल एजुकेशन और नेसेसिटीज. सोल को कुछ आवश्यकता नहीं, पर शरीर मेंटेन के लिए हम लोग करते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 14th वर्स. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Okay. Next verse is very important again. 2.15. Yam hina vyathayanti yate purusham purusharshava samah dukkha sukham dhiram swamritatvaya kalpate. So mrita and amrita. Mrita means one who will die and amrita means one will never die. So, best among men, Krishna is saying, the person who is not disturbed by happiness and distress and study in both is certainly eligible for liberation. तो अभी इसके पहले वर्स क्या था, बहुत ही अच्छा, ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रोनोलॉजी इफ यू सी. पहले कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नहीं था, ये लोग नहीं हैं, तो विलाप करने की आवश्यकता है. फिर बाद में अर्जुन का ये तर्क हो सकता है कि ठीक है, आपकी बात तो समझ ही जा सकती है, आप so just a moment. So तर्क ये हो सकता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं, तुम नहीं, मैं नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे या नहीं होंगे. तो अर्जुन का ये तर्क हो सकता है कि ठीक है, आपकी बात तो मानी जा सकती कि आप तो भगवान हैं, पर हम रोज़ाना देखते हैं कि कई जीव मरते हैं, जीव जीते हैं, जन्म लेते हैं. तो जब भगवान ये बताते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम, ये देह नष्ट होता है. ओके, देह जो है, देह को धारण करने वाला देही अलग होता है. ओके, सो इट्स सेम फॉर यू ऑल्सो, इट्स सेम फॉर यू लाइक मी, आई एम इटर्नल, यू आर ऑल्सो इटर्नल बीइंग. बट क्या है, मैंने तुमको भौतिक संसार में एक यंत्र आरूढ़ानी माया, एक माया का यंत्र मैं तुमको बिठा दिया है. तो यंत्र यानी शरीर रूपी जो यंत्र है, इसमें आत्मा को बिठा दिया जो कि इटर्नल बीइंग है. एंड दैट्स व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग, बिकॉज सो मच अटैच्ड यू आर टू द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग द प्लेजर एंड पेन थ्रू दिस बॉडी. एंड जिस प्रकार स्वप्न में कोई व्यक्ति शेर को देखता है, भयभीत हो जाता है, एक्चुअली रियलिटी में शेर नहीं है, वह स्वप्न में शेर है, वह भ्रमित हो चुका है कि मैं शेर को देख रहा हूँ. उसी प्रकार जब आत्मा में भ्रम हो जाता है इतना बड़ा कि वो देह है, ये शरीर ही मैं हूँ, तभी वो सभी पेन्स और प्लेजर्स को इसके एक्सपीरियंस करने लगता है. और फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये कह सकता है कि ठीक है, पर प्रॉब्लम्स तो आते हैं ना, दुख तो होता ही है ना, पर फिर भी भले हम शरीर नहीं आत्मा है, पर दुख तो होता है ना, पेन तो होता है, शारीरिक पेन होता है, शारीरिक नहीं, मानसिक भी दुख होता है ना. कई बार टेंशन्स आते हैं. तो कृष्ण फिर से कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस, व्हेन द सेंसेस कम्स इन कांटेक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो दुख आना ही है.
देयर विल बी सम प्लेजर एंड पेन, बट यू हैव टू टॉलरेट लाइक सीजन्स. तुम सहन करना सीख लो. तो अर्जुन का ये तर्क भी हो सकता है कि सहन करके होगा क्या, मैं सहन नहीं करूं या विलाप करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है. ये वर्स इसका आंसर है. यम ही ना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्व सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते. जो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है इस संसारी सुख और दुख से, और सदैव स्टेबल रहता है, स्टडी इन बोथ, सुख में भी वो भगवान की भक्ति साधना करता है, दुख में भी करता है, ऐसा व्यक्ति सही में योग्यता प्राप्त करता है जिससे वो भगवत धाम जाए. सो इसलिए भगवत धाम जाना है कि इफ यू वांट टू बिकम लिबरेटेड, तुमको मुक्त बनना है, सभी दुखों से मुक्त होना है, तो तुमको सहन करना आना पड़ेगा. So purport by Srila Prabhupada, anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness, is certainly a person eligible for liberation. जैसे हम we are the person who is not disturbed by happiness when he is determined, हम भक्ति के साधना करने में इतना निश्चय है कि कुछ भी सुख आने दीजिए, कुछ भी दुख आने दीजिए, और हम उसको सहन करते हैं और हम हमारी भक्तिमय सेवा को जारी रखते हैं, ऐसा व्यक्ति सही में योग्य है भगवत धाम जाने के लिए. भागवतम में भी ये श्लोक आता है ना, तत्तेनुकंपान सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपते सदाय भाक. वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है. सदाय भाक, लाइक अ सन हैज़ अ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ अ फादर. Similarly, this living entity, this devotee has a right to enjoy supreme abode or enter into a supreme abode. For why? Because he is tolerating the problems. Tattenu kampan susamikshamanaha. How he is tolerating? By thinking these problems are the mercy of the Lord. I deserve more punishment, but Krishna is giving very less. Bhunjana evatma kritam vipakam. Redvag vapuri vidhan namaste jivet yo mukti sadabhai. That's why I offer obeisances by heart, by body, by mind to the Supreme Lord. And that person, that devotee, in spite of many problems, still tolerates and focus on the service of the Lord, considering these problems at the mercy of Lord. कि ये सब भगवान की दया है, भगवान की करुणा है कि मुझे ऐसा शरीर मिला है अथवा ऐसी फैसिलिटीज़ मिले हैं या ऐसे संबंधी मिले हैं. So the problems, these problems are mercy, and one who thinks in such a way and tolerates the problems, that person is eligible to go back to Godhead. तो हम भगवत धाम जाने के लिए हमको व्यथित नहीं होना, विचलित नहीं होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम से. So in Varnashram institution, the fourth stage of life, या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ बहुत ही ऑस्टेयर रहती है, बहुत ही सहन करना पड़ता है. दैट इज संन्यास. इज़ अ वेरी पेन्स टेकिंग सिचुएशन, बट वन हु इज सीरियस अबाउट मेकिंग हिज लाइफ परफेक्ट श्योरली अडॉप्ट द संन्यास ऑर्डर ऑफ लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज. ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है. सभी तपस्याओं में से ब्रह्मचर्य बहुत ही उत्तम तपस्या मानी जाती है और बहुत ही कठिन मानी जाती है. सबसे उत्तम ब्रह्मचार्य ही बेसिक है. बिना ब्रह्मचार्य का व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता. तो ब्रह्मचार्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. until unless one is enjoying sensual life, sexual life, it is very difficult for him to progress Krishna consciousness. Okay, that so-called attachment for this attachment for the fair gender, fair sex is very dangerous. पुरुष का स्त्री प्रति आसक्त होना, स्त्री का पुरुष प्रति आसक्त होना बहुत ही घातक साबित होता है आध्यात्मिक प्रगति में. मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंतिया निरय द्वारमस्य. वो नरक का द्वार है. स्त्री के लिए पुरुष नरक का द्वार है, पुरुष के लिए स्त्री नरक का द्वार है. इसलिए बहुत ही अलर्ट होकर व्यक्ति को डीलिंग करनी चाहिए. नॉट ओनली रिगार्डिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड इंट्रा मैरिटल अफेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, they are most abominable thing in the whole world, but at the same time even attachment towards family members is very dangerous. What to talk about adultery. Okay, अनैतिक संबंध की तो बात ही छोड़ दीजिए, इवन नैतिक संबंध में भी आसक्त होना
कितना घातक हो सकता है, हम पुराणजन की कथा में सुन सकते हैं भागवतम में। पुराणजन कथा में पुराणजन नामक राजा, वो इतना आसक्त था अपनी पत्नी से, कितना आसक्त था। एक बार उसकी पत्नी जो थी वह, उसने क्या किया, वो कोप भवन में चली गई। उस टाइम पे ना दुख व्यक्त करने के लिए भी ये भवन हुआ करता था, ताकि राजा को पता चले कि अभी ये दुखी है। आजकल कितना मैसेज डालने के बाद भी पता नहीं चलेगा दुखी है, समझ में नहीं आता मैं दुखी हूँ, मैं से डिस्टर्ब हूँ। पर पहले उसे कोप भवन, जिस प्रकार कई कई कोप भवन में गई थी और खुले बाल छोड़ दिए थे और पूरा आभूषण निकाल दिए थे और ठीक से साड़ी भी नहीं पहनी थी, कैसे वैसे। तो ये शोक का लक्षण है, आभूषण नहीं रखना और बालों को खुला छोड़ना, ये शोक का लक्षण है, शोक। और ऐसे में जब राजा आते हैं, पुराणजन राजा जब अपनी पत्नी को ढूंढते हुए आते, देखते कि बहुत विलाप कर रही है, तो अपने उनका सिर को, अपने शीश को अपने गोद में रखते हैं। बोले क्या हुआ, तो वो कहती है कि अब इतने दिन से बाहर गए शिकार करने के लिए, मेरे पर ध्यान ही नहीं दिए। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। सो जब पुराणजन पूछता है कि क्या हुआ, क्यों इतने विलाप कर रहे हो, तो वो पूरा जो उसकी वाइफ है, जो पत्नी है, वो कहती है कि आप इतने दिन कहाँ चले गए थे, मुझे कोई ध्यान ही नहीं दिए, ये नहीं दी, पूरा इमोशनली इतना ब्लैकमेल कर पूरा बस में कर दी इसको। और फिर पुराणजन इतना बह गए इमोशन में आके कि नहीं अभी मैं तुमको बहुत ध्यान दूंगा, ये वो, और इतना आसक्त हो जाते हैं, फिर सदैव अपने वाइफ को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं। एंड देयर आर मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स ही हैज़ रिलेशनशिप विथ हर। एंड ऐसे करते करते एक दिन मृत्यु आती है पुराणजन की, और वो पत्नी को स्मरण करते हुए मरता है। स्त्रीत्वम स्त्री प्रसंगतः, कपिल मुनि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को स्त्री का जन्म मिलता है जो स्त्री से आसक्त होता है। इसे पूर्ववर्ती लोग क्या करते थे कि स्त्रियों को ट्रेनिंग दिया जाता था कि पति की सेवा कैसे करें, ताकि इसको अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिले। ओके, प्रभुपाद कहते हैं व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट लाइफ दे विल स्वैप देयर पोजीशंस, तो वो पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। तो भी अब इतना तुमने मुझे पीड़ा ना, अब मेरी बारी, आली 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 आता माझी बारी आली। तो इसलिए कभी कभी बाप बेटा भी स्वैप होते हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना दादाजी आया घर में, दादाजी आए घर में, होता है, देयर इज राइट, अटैचमेंट इतना होता है, कभी कभी कोई आ सकता है सैड सिस्टर भी। तो व्हाट इज़ द पॉइंट इन दैट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वन हैज़ टू बी वेरी सीरियस। अगर नैतिक संबंध में इतना धोखा है, व्हाट टू टॉक अबाउट अनैतिक संबंध, फिर उसमें तो कितना बड़ा नुकसान होता है व्यक्ति का। प्रभुपाद कहते हैं इट्स स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन आवर स्पिरिचुअल पाथ, ब्रेकिंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, और खास करके इलिसिट रिलेशनशिप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली, फॉर स्पेशली फॉर अ डिवोटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ही शुड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स प्रॉपरली। डोंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना है जीवन में, इससे हम भक्ति में और दृढ़ हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचार्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचरती थी ब्रह्मचार्य, वन हु डिपेंड्स, वन कंप्लीटली समर्पण है भगवान के प्रति, उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं। ही नो मोर डज सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो यहाँ पे व्यथित नहीं होना, इसलिए सन्यासी के लिए बहुत ही पेन सीकिंग सिचुएशन होता है। नॉट ओनली ही हैज़ टू कंट्रोल हिज सेंशुअल डिज़ायर्स, क्योंकि ऐसे नहीं है कि व्यक्ति बुढ़ापे आने के बाद संन्यास लेता है तो उसको कोई काम भावना नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि काम भावना वो मन में उत्पन्न है, मन में तो है ना भरी, इंद्रियां कमज़ोर हो चुकी हैं। अब बुढ़ापे में व्यक्ति की इंद्रियां कमज़ोर हो जाती, शरीर क्षीण होने लगता है, पर मन तो जवान ही ना। इसे तो कहते हैं ना अभी तो मैं जवान, तो जवान मन है, माइंड नेवर गेट्स ओल्ड, एंड दैट्स वाई इवन दे हैव अट्रैक्शन टू एन्जॉय वुमन। एंड द पॉइंट इज दैट the senses are not strong enough to enjoy woman, because to enjoy woman literally is inviting death. So what they do, that just by looking or just by contemplating on woman they enjoy them. So that's such an abominable thing. If the person is not trained in brahmacharya, especially the first 25 years, 25 साल तक ब्रह्मचार्य का ट्रेनिंग नहीं मिला है, आश्रम का ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, बहुत डिफ़िकल्ट होता माइंड को कंट्रोल करना इवन एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज। इसलिए वी हैव सीन सो मेनी केसेस कि बूढ़े लोग दे वॉच पोर्नोग्राफी एंड ऑल दैट।
तो ये बहुत ही घृणित चीज़ है ऐसा करना। यंग लोग तो बात अलग है, क्योंकि उस टाइम पे लस्ट पीक पे होता है, 21 ईयर्स 18 ईयर्स, बट व्हेन इट कम्स टू ओल्ड पीपल ऑल्सो दे आर आउट ऑफ दिस। अब प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि हम लोग ने बूढ़े लोगों को देखा है कि पब में जाते हैं और दे वांट टू एंजॉय वुमन, और वुमन वांट टू एंजॉय मैन समटाइम्स, इवन ओल्ड लेडीज़। सो ये बहुत ही घृणित चीज़ प्रभुपाद कहते हैं कि हमने कभी अपने संस्कार में, अपने जीवन में से नहीं देखा, पर यहाँ पे आके देख रहे हैं। तो ये पॉइंट ये है कि ऑस्टेरिटी और सन्यासी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इवन कंट्रोलिंग सेंसेस एंड एट द सेम टाइम लीविंग असाइड इज फैमिली, क्योंकि फैमिली में सदैव डिपेंडेंसी रहती है, मुझे ये ला के दो, मुझे ये करके दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड सब थिंग, जैसे खाना बना चाहिए वो खाना मिलेगा भोजन में, जब चाहे आप उठ सकते हैं, जब चाहे आप सो सकते हैं, जो चाहे आप काम चूज़ कर सकते हैं। पर जब संन्यास आश्रम में व्यक्ति आता है, देयर इज़ नो चॉइस फॉर हिम, ही हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन भिक्षा, ही हैज़ टू परफॉर्म लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज़, डिफिकल्टी, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज़, एंड ये डिफिकल्टी से व्यक्ति को व्यथित नहीं होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मतलब इसको स्वीकारना नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए भगवान प्रभुपाद कहते हैं 50 सूर्ध्वम गृहम त्याजेत, 50 साल के बाद घर को त्यागना, अर्थात व्यक्ति को फुल टाइम डिवोटी बनना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं है गृह त्याग करने की, वैसे तो गृह ठाके बने ठाके सदा बोले हरि डाके, इसका मतलब क्लियर है कि फुल टाइम डिवोटी, बिकमिंग फुल टाइम डिवोटी। इसलिए इवन प्रहलाद महाराज एडवाइजेस हिरण्यकशिपु, अभी बहुत हो गया अभी, अदान तो गोबीर विशताम तमिश्रम, तुम नरक में जाने वाले हो, तुमको इतना समझ में नहीं आता है, ओके। सो हरिम आश्रयत, जाओ वन में जाइए और हरि का आश्रय लीजिए, ओके। तो ये एडवाइस कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वन हैज़ टू बिकम फुल टाइम डिवोटी। सो ऑस्टेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे व्यतीत नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी पालन करता है, व्यतीत नहीं होना चाहिए, टॉलरेट करना सीखना चाहिए उसने। थोड़ा सा भी सेंस कंट्रोल नहीं, मुझे नहीं होता है, एंड इवन इन ब्रह्मचारी लाइफ में ऐसे कभी कभी होता है कि कई लोग नए नए ब्रह्मचारी बनते हैं, नहीं मुझे ना बहुत याद आ रही है फैमिली की, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, या फिर बोलेंगे, या कभी कभी नहीं मेरा सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है, नो द वुमन थॉट्स आर कमिंग इन माई माइंड, दिस एंड दैट। एक्चुअली टॉलरेट करने से एंगेजमेंट भक्ति सेवा से वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यम ही ना व्यथिंती पुरुषम पुरुषम, वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है जो सहन करना सीखता है। So difficulties usually arise from having to sever family relationships to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. मतलब खराब विचार आएंगे मन में, पर उसको डेवलप नहीं करना है, उसको बढ़ावा या पोषण नहीं देना चाहिए। यद अवधि माम चेत कृष्ण पदारविंद नव दस रमण उद्यतुम रंतुम असित। यमुनाचार्य अपने स्तोत्ररत्न में ये श्लोक बोलते हैं, जब जब मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के रसास्वादन करता हूँ उस समय, तदवधि बटनारी संगमे, जब स्त्री संगम का, सेक्सुअल लाइफ का थॉट मेरे मन में आता है, मतलब इवन वाइल एंजॉइंग डिवोशनल सर्विस द थॉट विल कम, लस्टी थॉट्स में कम। यमुनाचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं, भवती मुख विकार शुष्ठु निष्ठिम अवच, बहुतु मुख विकार शुष्ठु निष्ठि वनम च, कि जब भी ऐसे थॉट आता है, जब मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ और नवीन नवीन रस को आस्वादन कर रहा हूँ, उस समय पे जब स्त्री का भोग का विचार जब मेरे मन में आता है, क्योंकि पूर्ववर्ती यमुनाचार्य जो पहले थे, आल बंदार नाम से उनको जाना जाता था, और वो राजा बन गए थे। वो स्टोरी अलग है पूरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, तो राजा कैसे बने वो, पर वो राजा बन गए थे। उस समय पे कई उन्होंने भोग किए होंगे और सेक्सुअल लाइफ एंजॉय किया होगा, तो ऑब्वियसली द थॉट विल कम, व्हेन यू एंजॉय समथिंग दैट थॉट विल कम इन योर माइंड। तो विचार जब आते हैं तो क्या बोलते हैं, माई लिप्स कर्ल इनटू डिस्टेस्ट एंड आई स्पिट ऑन दैट थॉट, मेरे होठ में विकार आ जाता है और मैं उस विचार पर ही थूक देता हूँ। तो दैट इज एडवांसमेंट। एडवांसमेंट इज दिस ओनली, कि जब मन में ऐसे कुछ भी विचार आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, उस विचारों पर क्लेश व्यक्त करना, उस विचार पर थूक देना ही बल है, यानी रिजेक्टिंग दोज थॉट्स, नॉट टू सकम और नॉट टू गिव अप द डिफिकल्टी। सो सिमिलरली इन अर्जुन्स डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एज अ क्षत्रिय, यहाँ पे ही इज एडवाइज टू परसिवियर even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons.
अगर हमारे घर में ही आतंकी है, कोई सोल्जर है, उसके घर में ही घर का ही व्यक्ति आतंकवादी निकला, तो सोल्जर को मारना अनिवार्य है उसको, भले ही उसके घर का व्यक्ति क्यों ना हो. So Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependent young wife as well as old mother had no one else to look after them. Yet for a higher cause he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. तपस्या सहन करना. Okay. So here very important words. व्यथित नहीं होना. So Madhvacharya here writes in this verse that not by the merely being equipoised and dispelling all sorrow does one become self-realized. सिर्फ मात्रा स्पर्शस करने, शीतोष्ण दुख को सहन करने से सब कुछ नहीं होता है, पर उसके आगे भी कुछ क्या है. When one has relinquished all conception of being the physical body, one becomes naturally filled with the spiritual attributes that are inherent of the soul. मतलब आत्मा के स्तर पे जब जी लेता है व्यक्ति, सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम जाएंगे, ये सहन करना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके ऊपर क्या है, व्यक्ति सभी अपने देहात्म बुद्धि वाले विचारों को तोड़ मरोड़ देता है और आत्मा के स्तर पे जीने लगता है. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. और कभी भी छोटे मोटे जितने भी प्रॉब्लम्स उससे विचलित नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये तो शारीरिक स्तर पे है, ये तो मानसिक स्तर पे है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो आत्मा हूँ. ऐसे स्तर पे आने के बाद फिक्स्ड इन दिस अवेयरनेस वन इज नोन एज पुरुषा, रियल पुरुषा. दैट दिस हैज बीन रिटन इन प्रवृत्ति स्क्रिप्चर. Pravritta scripture. Okay. The word pura is in Purusha signifies full. पूरा मतलब पुरुष में पूरा मतलब फुल, जैसे नहीं पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ. सो इज अ कंप्लीट पर्सन देन. सो जैसे बोलते हैं रेमंड इज द कंप्लीट मैन, तो रेमंड पेन के कंप्लीट मैन नहीं होता है, सेल्फ रियलाइज होकर कोई व्यक्ति कंप्लीट होता है. सो फुल इन नोबल एट्रीब्यूट्स, उसमें सभी नैतिक विचार, नैतिक गुण आ जाएंगे. एंड फुल इन विजडम, सभी वैल्यूज आ जाएंगे. द मीनिंग ऑफ द वर्ड पुरुष इज इल्यूमिनेटेड, वो प्रज्वलित, ओके, अंधकार को छोड़कर वह प्रकाश के स्तर पर आ जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स 2.15 कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर व्यक्ति को सहन करना चाहिए सभी प्रॉब्लम्स को, और जो कभी भी विचलित नहीं होता है सुख दुख के संसार के, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति सहजता से कर सकता है. सो हियर वी विल स्टॉप. थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की जय.